Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. Today we are going to take one of the very important topic of UPSC CSAT, that is permutation and combination. Okay, and with this topic we are nearby winding up this course of CSAT. In the beginning of this course, I told you that we would be winding up this course in about 35 to 40 days, and so we are on our track. And after this course is over, we'll start to give you a revision test on each and every topic, and then we will discuss it so that before the main examination of prelim comes, you are able to revise all the concepts very easily and in a crisp manner. So let's start with the permutation combination. So UPSC's syllabus would never mention permutation and combination directly because it is not asking you permutation or combination at all. What it asks you is the selection, arrangement, and your counting, and these are part of reasoning and not permutation combination. So what UPSC asks is about counting, that for example you have to do a task, then in how many ways you can complete a task. So basically, if you go and elaborating this thing further, you can say it's a permutation or combination thing. But basically for UPSC, it's a counting thing and it's a part of reasoning. Let me explain. For example, you are living in city A, okay, and here is city B. So you have, let's say, three mode of transport. Let's say you have cycle, you have bus, and then you have a car. So then it would be like, then in how many ways can you go from A to B? So if you are allowed to use only cycle, bus or car only separately, so this can be your permutation, that कि आपको जो है एक ही चूज करके जाना है, तो आप साइकिल से जाएंगे तो वो एक तरीका हो गया, बस से जाएंगे दूसरा तरीका हो गया, कार से जाएंगे तीसरा तरीका हो गया। फिर वहीं अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको ये कह दिया कि आप साइकिल, बस या कार में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से वहाँ जा सकते हैं, तीनों को सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो या एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So this is what UPSC is asking to you, that for doing a task, if you are assigned a task, then in how many ways can you complete that task? UPSC is asking that, and that is a part of counting. So let's say, जैसे मैंने बोला आपको कि A से B पे जाना है, आप साइकिल से जा सकते हो, बस से जा सकते हो और कार से जा सकते हो। तो साइकिल से जाने का एक तरीका है, बस से जाने का दूसरा, कार से जाने का तीसरा। तो टोटल कितने तरीके हो गए, मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3, तो ये काउंटिंग है और कुछ नहीं है। ओके, so even though UPSC is not asking that, but we'll still cover this topic elaborately. In this part, we'll be covering the concept and illustration to make you understand those concepts. And in the next lecture, we'll be taking up the permutation combination practice questions, because जितना ज़्यादा आप permutation combination को practice करोगे उतना ज़्यादा आपका ये improve होता जाएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे आपके लिए इसके PYQ, ठीक है। सो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को शुरू करने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल कुछ नहीं है, देखिए मैथमेटिकल टर्म में समझाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप बस जान लीजिए है क्या। समझ लीजिए कोई चीज़ लिखी है आपके पास n, ये एक नंबर है, तो इसका फैक्टोरियल होता है आपका, जैसे कि 1 इंटू, अगर n फैक्टोरियल दे दिया आपको तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू आगे तक n फैक्टोरियल, n तक चले जाएगा। मतलब जैसे कि आपके पास दिया है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सपोज यू आर गिवन दिस 3 फैक्टोरियल, तो यू कैन राइट इट डाउन एज 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और आप 4 फैक्टोरियल ले सकते हैं ऐसे ही, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल इज नथिंग, फैक्टोरियल इज एन ऑपरेटर whose symbol is like that, and after any number, when the factorial symbol is attached, then you have to expand that number like this. Okay, I hope this is clear to you. अब हम चलते हैं आगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशन एक्चुअली में है क्या? कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। जैसे कि आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं करने के लिए, ठीक है, तो कितने तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो, वो उसका सिलेक्शन है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कि पहले ये करना है फिर वो करना है फिर वो,
बस आपको ये बताना है कि कितने तरीके से कर सकते हो तो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच आर थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स एन थिंग्स। मतलब कि अगर आपके पास कुछ एन थिंग्स हैं, अगर उसको उसमें से आपको आर निकालनी है तो वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। और कॉम्बिनेशन को आप लिखते हैं एन सी आर की फॉर्म में, एन सी आर। इसका एक्सपेंशन होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, सिलेक्शन का तरीका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक आप एक कोच हैं, एक टीम के आपके पास 20 प्लेयर्स हैं और आपको 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है। तो आपको ये नहीं दिया गया कहीं भी कि आप उसमें से बॉलर चूज करो, बैट्समैन करो, वो करो वो करो। आपको बस ये बोल दिया गया कि आपको 11 लोग उन 20 में सेलेक्ट करने हैं। तो आप किसका यूज करोगे? कॉम्बिनेशन का। कि आप फिर आपसे कोई पूछता कि आप ये कितने तरीके से कर सकते हो, तो आपको जितने नंबर ऑफ तरीके बताने हैं उसको कहेंगे आप, सिलेक्शन करने के जो तरीके हैं उसको आप कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 20 प्लेयर थे, आपको उसमें से 11 सेलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज में कर सकते हो? अगर वो वेज निकालने हैं तो उस टाइम पे आप कॉम्बिनेशन का यूज करते हो। तो कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, वो सिलेक्शन है कि 20 में से मैंने 11 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इसका तरीका हो जाएगा 20C11। ठीक है। जो सारा का सारा बड़ा सबसेट दिया है वो यहाँ पे आएगा, और उस सबसेट में से जितना छोटा लेना है वो यहाँ आएगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 - 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 11 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एग्जांपल समझते हैं। सिलेक्टिंग 4 people फॉर अ जॉब इन विच 6 have applied। देखिए, अब टोटल कितने लोगों में सेलेक्ट करने हैं? 4। आपको 6 में से। जैसे कि आपके पास टीम के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर अवेलेबल थे कितने? 20। तो आपको टीम के लिए कितने सेलेक्ट करने थे? उसमें से 11। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास कैंडिडेट हैं 6 और आपको सिलेक्ट उसमें से करने हैं 4। तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 6C4, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन एक सिलेक्शन का तरीका है। ठीक है। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सेलेक्टिंग। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन को आप अरेंजमेंट भी कह सकते हो, या तो आप इसको अरेंजमेंट कह सकते हो, अरेंजमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो ऑर्डर्ड सिलेक्शन। मतलब कि जब आपने सेलेक्ट किया तो उसमें ऑर्डर क्या रहा। ठीक है, ये होता है। जैसे कि परम्यूटेशन मीन सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग। मतलब आपने सेलेक्ट तो कर लिया और उसका कोई एक अरेंजमेंट की फॉर्म में सेलेक्ट किया आपने। ठीक है। जैसे कि कॉम्बिनेशन में तो आप रैंडमली कुछ भी कर रहे थे कि मेरे पास, जैसे कि समझ लीजिए मेरे पास 20 वो थे प्लेयर्स, उसमें से मुझे टीम बनानी है 11 की। तो मैं किन्हीं भी 11 को उठा ले रहा हूँ उसमें से। पर अब मुझे अगर ऐसी टीम बनानी हो जिसमें कि आपके पास 5 बॉलर होने चाहिए और 5 बैट्समैन, तो ये ऑर्डर्ड सिलेक्शन है कि 5 तो बॉलर लेने हैं और 5 बैट्समैन लेने हैं। ठीक है। इसके अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो इसके अंदर। जैसे कि ऐसा हो कि आप कह रहे हो कि 5 बॉलर 5 बैट्समैन, या फिर 6 बैट्समैन या 5 बॉलर लेने हैं। तो वहां पर आपका परम्यूटेशन आता है, जहां पे आपको एक ऑर्डर में सिलेक्शन करना है कि 5 बॉलर और 6 बैट्समैन। ठीक है। और कॉम्बिनेशन में तो रैंडमली ले रहे थे आप 11 के 11। तो permutation means selecting and arranging r things from n things। ठीक है। तो आपको n जो समझ लीजिए यहाँ पे 20 वो दिए थे टोटल प्लेयर, और r थिंग मतलब उसमें से आपको ऑर्डर वे में r सेलेक्ट करने हैं। तो ये था यहाँ पर। ठीक है। तो हम आपके लिए अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें हो जाएगा, इसका होता है फॉर्मूला NPR। परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है NPR, जिसको आप लिखते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां हम कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। 3 people applied for a job and 2 have to be selected। मतलब 2 लोगों ने अप्लाई किया और 2 को सिलेक्ट करना है एट द पोस्ट ऑफ IAS एंड IPS। तो कितने तरीके से हो सकता है ये? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3p 2 वेज से। तो ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल। 3 - 2 इज 1, तो 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको एक्सपैंड करके 6 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 लोग आए थे अब, तो आईएएस और आईपीएस की फॉर्म में सिलेक्ट करना है ना उन्हें। तो ये 3 पीपल हो सकते हैं, P1 P2 P3। अब इसमें से सिलेक्ट करना है आपको आईएएस और आईपीएस, 2 पोस्ट।
तो आप P1 को IS कर सकते हो, ठीक है, P2 को IPS कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कर सकते हो, देखो देखो जैसे आप ऐसे कर लो कि आपने IAS मान लिया P1 को और P2 को IPS मान लिया, ठीक है। फिर P1 को आप IPS मान सकते हो और P2 को IS मान सकते हो। ऐसे सिमिलरली आप P2 P3 के लिए करते जाओगे तो आपके पास 6 तरीके आ जाएंगे ये करने के, 6 वेज आ जाएंगे करने के, ठीक है। तो वहां पर ये आपका, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है कि IS या IPS ही होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड सिलेक्शन है ये, ऐसे कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। रैंडम ये होता कि आपको बोल दिया आपके पास 3 लोगों ने अप्लाई किया और 2 सिलेक्ट हो गए। इसे कॉम्बिनेशन की अगर टर्म्स में बात करते हैं तो 3 पीपल ने अप्लाई किया, 2 सिलेक्ट होना है, तो फिर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कोई ऑर्डर सिलेक्शन नहीं है कि किसको कौन सी जॉब देनी है। तो कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसको कौन सी मिलेगी। कॉम्बिनेशन में सिर्फ तरीका है सीधा कि अगर ऐसा दिया गया तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं, तो 3C2 डायरेक्ट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 = 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं। वेयर टू यूज परम्यूटेशन, आप परम्यूटेशन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आप कर सकते हो जैसे कि आपको वर्ड बनाने के लिए पूछता है कि आपको दे दिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से पहले 5 लेटर दे दिए, A B C D और E, ठीक है। उसमें से आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ऐसे बोल दिया आपको, और उसमें से सिर्फ मतलब कि वॉवल से शुरू होना चाहिए वो वर्ड, और आखिरी में कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे जो एक बनेगा वो परम्यूटेशन जो सॉल्व होगा। नंबर्स बनाने का जो तरीका होता है कि आपको 9 नंबर दे दिए गए हैं, उसमें 3 डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, उस तरीके से। फिर बैटिंग ऑर्डर, फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर पुटिंग लेटर, जैसे कि आपको अलग अलग वो दिए हैं, क्या कहते हैं, एनवलप, और आपको अलग अलग एड्रेस दिए हैं, तो आपको कितने तरीके से उन एनवलप्स, मतलब उन लेटर्स को एनवलप में डाल सकते हो। या फिर कोई आपका रेस हो रही है घोड़ों की, कि घोड़ा ये फर्स्ट, इस मतलब कौन सा फर्स्ट आया कौन सा सेकंड आया, तो आप वहां भी परम्यूटेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब रिलेशन क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में, रिलेशन है NPR = R⁴ ठीक है। NPR आपको पता ही है क्या होता है और NCR भी पता है, तो ये रिलेशन है NPR, मतलब परम्यूटेशन = R⁴ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ केसेस लेंगे जहां हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। उन केसों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर आप ओवरऑल चैप्टर पढ़ रहे हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो पर क्योंकि यूपीएससी सिर्फ काउंटिंग के टर्म से पूछती है तो इनकी जरूरत तो है नहीं वैसे, पर फिर भी आप कर लीजिए, ठीक है। अगर वो बाई चांस पूछ दे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम आपको कराते हैं इसलिए वो सारे केसेस। इफ वी हैव 3 थिंग्स टू डू, अगर हमारे पास 3 चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। पहली चीज को करने का मेरे पास एक्स वेज है, एक्स तरीके से कर सकता हूँ मैं पहली चीज को। दूसरी चीज को कर सकता हूँ वाई तरीके से, और तीसरी चीज को कर सकता हूँ जेड तरीके से। समझ लीजिए, ऐसे मान लेते हैं कि एक प्लेयर है, वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है और फील्डिंग भी कर सकता है। वो बैटिंग लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है, राइट हैंड से भी, तो उसके 2 तरीके हो गए बैटिंग करने के। फिर वो बॉलिंग आपकी कर सकता है, पेस भी कर सकता है, स्पिन भी कर सकता है, 2 तरीके से बॉलिंग कर सकता है। और वो फील्डिंग की फॉर्म में विकेट कीपिंग भी कर सकता है, नॉर्मल फील्डिंग भी कर सकता है, तो वो भी 2 तरीके हो गए। तो इसी तरीके से है ये कि इफ वी हैव 3 थिंग्स टू डू, देन पहली चीज को करने के हैं मेरे पास एक्स वेज, दूसरी चीज को करने के वाई वेज हैं, और तीसरी को करने के जेड हैं। तो अगर तीनों चीजों को एक साथ कंसीडर करा जाए कि वो कितने अलग अलग टास्क को एक साथ कर, मतलब परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ वो हो सकते हैं, देन देयर विल बी x × y × z वेज ऑफ डूइंग ऑल 3 थिंग्स टुगेदर, ठीक है। तो अगर वो सारी चीजें करता है तो कितने तरीके होंगे तीनों को एक साथ करने के, होंगे x × y × z, ठीक है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए वी हैव 5 अल्फाबेट्स A B C D and E, एंड वी हैव टू फॉर्म अ 3 लेटर वर्ड। 3 लेटर वर्ड बनाना है, उसमें सारे लेटर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये पहले वाला, अब देखिए अगर आपको ऐसे लेटर वगैरह बनाना होता है 3 डिजिट का, तो आप पहले ना कुछ मत करो, बॉक्सेस बना लो। अगर 3 डिजिट लेटर है तो इसमें जैसे कि आपको वर्ड बनाया तो ABC बनाओगे, तो पहले बॉक्स में समझ लीजिए A आ गया, दूसरे में B और तीसरे में C। तो बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखो। अगर यहाँ 4 लेटर लिखा होता
तो बॉक्स बना देते 4 यहाँ पर। उस बॉक्सेस को फिल करने के तरीके ढूंढो तो आपका आंसर आने लग जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं। अब देख लीजिए जैसे वो थ्री वे जो थे आपके, थ्री थिंग्स जो थी उनको ये मान लीजिए बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। अब देखो जो पहला बॉक्स है, अब ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब पहले बॉक्स को में या तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हो गए? 5। अब पहले बॉक्स में कोई ना कोई लेटर आ गया। अब मेरे पास बचे कितने लेटर? 4 लेटर बचे। तो दूसरे बॉक्स को भरने का तरीका कितना हो सकता है? 4, तो 4 तरीका। तो पहले काम को करने के लिए यानी कि पहले बॉक्स को भरने के लिए कितने वेज में काम हो रहा है? 5 वेज में। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए कितने के वेज में काम हो रहा है? 4 वेज में। अब अब यहाँ पर 2 लेटर यूज हो सकते हैं, 3 लेटर बचे हैं, तो तीसरे बॉक्स को भरने का कितने तरीके हैं? 4। तो देखियो ना कि ये 3 चीजें थी, थ्री थ्री थिंग्स थी। थ्री थिंग्स क्या हो गई आपकी? ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। ठीक है। बॉक्स 1 को का काम करने के लिए 5 वेज है, बॉक्स 2 का काम करने के लिए 4 वेज है, बॉक्स 3 का काम करने के लिए 3 वेज है। अब देखो जब ये 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है पूरा का पूरा, तो आप क्या करोगे? इन तीनों कामों को एक साथ करना है कि बॉक्स 1, 2 एंड 3 को एक साथ भरना है आपको, तभी तो 3 लेटर वर्ड बनेगा ना। तो हमने यहाँ अभी जाना था कि उसको करने का तरीका होता है 5 into 4 into 3। कि अगर हर एक काम को, अगर तीन काम है, उन हर एक काम को करने के एक्स वाई और जेड वेज हैं, तो टोटल उस पूरे काम को अगर एक साथ करना है तो 5 into 4 वो एक्स इंटू वाई इंटू जेड वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 into 4 into 3 वेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे चलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की तरफ। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि जो लीनियर फॉर्म में हो रहा है, मतलब एक लाइन की फॉर्म में अरेंजमेंट्स हो रही हैं सारी। अब अरेंजमेंट हो रही है सर्कल में। अब देखो अगर आप सर्कल में यहां से शुरू कर लो, ठीक है, या सर्कल को यहां से शुरू कर लो, एक ही बात है। ठीक है ना, वन एंड द सेम थिंग इजंट इट? अगर मैं सर्कल को कहीं से भी शुरू करूं, यहाँ से करूँ यहाँ से करूँ, एक ही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो सर्कल में क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, इज n-1। ठीक है, अगर सर्कल पे आपको n चीजें अरेंज करनी है तो उसके कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे? n-1 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट को मैटर नहीं करते, मतलब सारे ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे कि एक नेकलेस है, नेकलेस के अंदर सारे बीड सेम है, तो आप चाहे नेकलेस को इधर से देखो या नेकलेस को इधर से देखो, वो सेम लगेगा। तो वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता। पर जहाँ पे अगर सर्कल में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि लोग बैठे हैं सर्कल में अलग अलग शक्लों के, तो वो अरेंजमेंट मैटर करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, जैसे कि नेकलेस के केस में होता है, तो वहां पे एन, अगर नेकलेस के अंदर एन बीड्स हैं, एन बीड्स हैं, तो कितने तरीके से वो हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो हमें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहला केस है अरेंजिंग n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब आपके पास n अलग अलग टाइप की चीजें थी और आप उन सबको एक साथ अरेंज कर रहे हो, ठीक है, एक ही बारी में, तो उसका उसका तरीका हो जाएगा n फैक्टोरियल। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। समझ लीजिए आपके पास 9 डिजिट है, ठीक है, 9 डिजिट है आपके पास, ठीक है, और ये 9 डिजिट है आपके पास, और आपको बनाना है एक 9 डिजिट नंबर। कितना डिजिट नंबर बनाना है? 9 डिजिट ही बनाना है। ठीक है। और हर उसमें एक डिस्टिंक्ट डिजिट आना चाहिए, मतलब। तो आपके पास कितने वेज है 9 डिजिट नंबर बनाने के लिए? आप यहाँ 9 बार बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो अब आपका n की जगह 9 मान लो, n की जगह 9 मान रहे हो आप, तो इस वाले को भरने के 9 वेज है, इसके 8 है क्योंकि एक तो भरा जा चुका है। तो अब यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो वही हो गया कि अब अगर इसको करने के 9 तरीके हैं, इसको 8 हैं, इसको फिर आगे तक 1 है, तो इस टोटल काम को करने कितने हो गए?
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अबे क्या बन गया? 9 फैक्टोरियल नहीं बन गया? 9 फैक्टोरियल खोलोगे तो ये बन जाएगा। तो वही ये केस है कि अगर हमारे पास n चीजें हैं, उन n डिफरेंट चीजें हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, अरेंजिंग n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, तो ये आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल वेज में उस काम को कर सकते हो आप, जैसे कि 9 फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अमंग n थिंग्स x are alike one type, y are alike of one type and z are alike of one type। अब जैसे कि आपके पास n चीजें थी, ठीक है, वो आपको अरेंज करनी है, पर उन n में से जो है x एक जैसी है कुछ टाइप की, y कुछ एक जैसी एक टाइप की है, और z एक टाइप की है, तो उसमें क्या बनेगा आपका? उससे बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल इंटू z फैक्टोरियल। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि आपको ये दिया हुआ एक वर्ड, ठीक है, तो अब इसमें से कितने डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं इसको यूज करके, आपको ये बताना है। तो इसको वही है ये कि एन एन ये जब ये टोटल नंबर जितने भी इसमें अल्फाबेट दिए हैं वो तो एन हो गया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। एन इज इक्वल टू 12 हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक वर्ड दिया हुआ है इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट मौजूद हैं उनको यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो, ये पूछा गया अगर आपसे। अब तो वर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन लेटर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो वही हो गया ना कि अमंग एन थिंग्स, अगर अरेंज कर रहे हो आप एन थिंग्स जिसमें कि एक्स वाई और जेड अलाइक है, मतलब एक्स टाइप की कुछ है, वाई टाइप की कुछ है और जेड टाइप की कुछ है, तो यहाँ पे आ रहा है सीधा सीधा। इसमें एन क्या हो गया? एन आपका हो गया यहाँ पर क्या? एन आपका हो गया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एन थिंग्स हो गई ये। अब देखो, एक्स अलाइक मतलब ये दो एक्स एक जैसे हैं, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा। अब जो जो इसमें ऐसे वर्ड अल्फाबेट है जो कॉमन है, एक से ज्यादा है, जेड के वाई भी है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा एक और। फिर जेड भी 2 बार है, ये भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और फिर ये जो आपका ए है, ये भी आपका क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं इसके? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो आप इस पूरे लेक्चर को देखो, उससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक केस को लिया गया जिस केस के टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब आगे है परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर टाइम्स, रिपीटिशन अलाउड। अगर देखो, अब आपके पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं जिनको एक बारी में जिसमें से एक बारी में आर चीजें ली गई हैं, और रेपिटेशन अलाउड है आपके पास। ठीक है, रेपिटेशन क्या है? अलाउड है। मतलब आप कितनी भी बारी एन को यूज, मतलब एन को मतलब एक ही बारी यूज नहीं करना, एन को आप जितनी मर्जी बारी यूज कर सकते हो। ठीक है, पर आर टाइम्स ही होना चाहिए, वो यूज आर टाइम्स ही होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एन टू द पावर आर। अब इसको बता एक एक उससे एक्सप्लेन करते हैं। हमने जैसे अभी 9 डिजिट वाला किया था ना ऊपर, कि आपके पास 9 डिजिट थे, ठीक है, तो समझ लीजिए आपको 9 डिजिट नंबर ही बनाना है और उसमें आप 9 डिजिट को कितनी भी बारी यूज कर सकते हो। तो वहां पे ये आ जाएगा ना आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 9 टाइम्स आ गया, तो 9 टू दी पावर 9 लिख सकते हो ना, कि 9 को आपने 9 टाइम्स यूज कर दिया, जैसे कि आपने एन को यूज किया आर टाइम्स। तो एक एग्जांपल समझते हैं। 4 डिजिट नंबर बनाया आपने 1 2 3 4 5 6 को यूज करके, और रिपीटिशन अलाउड था। तो देखो, अब आसान सी बात है, जब रिपीटिशन अलाउड है तो मैंने आपको बताया कि आप 4 डिजिट नंबर बना रहे हो, तो आप 4 बॉक्सेस बना लो पहले, बॉक्स 1 2 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4। अब देखो इसमें आपके पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पहले बॉक्स को भरने के कितने वेज हो गए? 6 वेज। दूसरे बॉक्स को भरने के, B1 को भरने के 6 वेज, B2 को भरने के भी 6 वेज, B3 को भरने के भी 6 वेज, B4 को भरने के भी 6 वेज। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ना, अभी हमने किया था ना ऊपर, कि अगर आपके पास कोई, जैसे कि कोई काम है, 3 काम है आपके पास, और उन तीनों कामों को अलग अलग करने के तरीके हैं एक्स वाई जेड, तो आप उसको पूरे जो, अगर सारे काम को एक साथ कर रहे हो, मतलब अब यहाँ भी तो 4 डिजिट नंबर जो है वो एक साथ बनाओगे ना पूरा यूज करके, तो पूरा काम एक ही बारी में हो रहा है।
तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज हो गए आपके 6 × 6 × 6 × 6, जिसको आप लिख सकते हो 6⁴। तो यहाँ पर कुछ नहीं है जो n की बात कर रहा है कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो n डिफरेंट थिंग्स क्या हो गई, ये 1 2 3 4 5 6, और टेकन r है टाइम, एक बारी में r टाइम्स ली गई है, मतलब एक बारी में 4 टाइम्स ली गई यहाँ पर। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन यहाँ भी अलाउड है। तो आपका जो है परम्यूटेशन बनेगा n⁴ तो यहाँ पे बनेगा 6⁴, मतलब यहाँ पे भी n⁴ मान लो इसे। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 6 और r की वैल्यू है 4, तो ये भी यही है 6⁴। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम देते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 का मतलब है सिलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स। मतलब आपके पास एक जैसी n चीजें दी गई हैं। यहाँ तो ये जो n चीजें थी अलग अलग थी सारी, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास ना जो n की n चीजें हैं वो सेम है, और उसमें से r चीजें सेलेक्ट करनी है आपको। उसे कितने तरीके से कर सकते हो आप, तो आंसर 1 आएगा। देखो कैसे हो सकता है ये। समझ लीजिए आपके पास 50 रोजेज हैं। कितने रोजेज हैं, 50। ठीक है, और वो सारे रोज एक जैसे हैं। आप उसमें से वो नहीं बता सकते कि एक रोज अलग है दूसरा अलग है, सारे सेम रोज दिख रहे हैं। तो अगर आपको उसमें से 5 रोजेज निकालने हैं, तो निकालने का कितने तरीका होगा, वो एक ही तरीका होगा ना, क्योंकि वो सारे रोज सेम लग रहे हैं। तो आप 5 एक बारी में कोई भी उठा लो, तो वो एक ही तरीका है आपके पास उठाने का। उसे कितने तरीके हैं आपके पास उसको उठाने के, एक ही हुआ ना कि आपने कोई भी 5 रोजेज एक बार उठा ली, तो आप देखोगे तो सेम ही लगेगा हर बार। तो आपके पास कितने तरीके हुए, सिर्फ और सिर्फ 1 यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब आगे चलते हैं केस नंबर 5 पे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है, अगर अब आपके पास हैं, सेलेक्ट करनी है आपने, या तो आप एक भी मतलब सिलेक्टिंग 0 या एक भी सिलेक्ट नहीं करी, या मोर थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स, तो उसके तरीके होंगे n+1 यहाँ पर। ठीक है, और वहीं अगर आपके पास टोटल सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अब पहले तो यहाँ पे n आइडेंटिकल थे, अब यहाँ n आइडेंटिकल नहीं है, अब यहाँ पे आइडेंटिकल है आपकी कितनी, अब आपके आइडेंटिकल नहीं है, अब ये डिफरेंट है n थिंग्स। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 2⁴n हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टोटल सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स, या तो एक भी चीज सिलेक्ट नहीं हुई, या उससे ज्यादा हो रही है, कितने में से, n डिफरेंट थिंग्स में से। n अलग अलग चीजें हैं वो सारी। ठीक है, तो अगर आपने 0 सेलेक्ट किया तो nc 0 हो जाएगा। आपने एक सेलेक्ट किया उसमें से तो nc 1। आपने दो सेलेक्ट किया nc 2। अब अपने n में से n सेलेक्ट किए तो ncn। तो टोटल हो गया 2⁴n आपके पास। इसका ये फॉर्मूला आता है, इसको ज्यादा एलैबोरेटिवली समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको समझा दूंगा कैसे हो रहा है ये इसके। ठीक है, इफ वन और मोर आर सिलेक्टेड ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है, एक या एक से ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि 0 सिलेक्शन ले नहीं रहे हम। तो 2⁴n में से हमने 1 माइनस कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम 1 या 1 से मोर ले रहे हैं, तो हम मतलब 0 सिलेक्शन वाली बात ही नहीं कर रहे। अब एक एग्जांपल समझते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6 डिफरेंट कॉइन्स। अब मेरे पास 6 डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स हैं, समझ लीजिए C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब ये बात यही हो रही है कि टोटल सिलेक्शन ऑफ, अब सम 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई ना कोई सम तो चाहिए। तो ये वही वाली बात हो रही है कि टोटल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर सिलेक्टेड। ठीक है, वन या मोर सिलेक्शन एंड डिफरेंट थिंग्स का। एंड डिफरेंट थिंग्स कितनी है, 6 है, 6 डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से कितने सम बन सकते हैं आपके पास। तो कुछ नहीं करना, आप देखो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे अब आप अगर आपके पास 6 कॉइन है, तो तरीके कितने होंगे आपके, देखो 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। ये हो गया कि नहीं,
यू आर गेटिंग? ये कहना हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6 डिफरेंट कॉइन। तो यही होगा कि 6 में से, अब सम बनाने के लिए आप 2 कॉइन लोगे, 3 कॉइन लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, या 6 के 6 ले लोगे। एक कॉइन से सम बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपको ये वाला यहाँ माइनस करना होगा। इसमें एक कॉइन निकाल के सम नहीं बना सकते आप। एक कॉइन को सिलेक्ट करोगे, इसमें जो सम क्या बनेगा, तो वो जो खुद कॉइन है वही है। और अगर वो बोलता है उस कॉइन को भी इंक्लूड करना है तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो अब इसका आंसर निकाल लो। यहाँ से आपका आ गया, देखो ये क्या आएगा, 6c2 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 फैक्टोरियल आपका 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर आपका 6 - 2 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 इज 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस टू, 4 - 2 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, 6 - 6 इज 0 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये 1 ही आ जाएगा आपका ये वाला। तो ठीक है, कट के पूरा, तो जीरो, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इसका ये आंसर आएगा, आप देख लो आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये बनता है यहाँ से। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आगे चलते हैं। Number of ways of distributing n identical things among r persons when each person may get any number of things। मतलब कि ये है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स, मतलब एन आइडेंटिकल थिंग्स है, मतलब समझ लो कुछ टॉफी है आपके पास और कुछ बच्चों को, अब टॉफी सारी एक जैसी है, वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और किसी बच्चे को कितनी भी टॉफी मिल सकती है 50 में से। तो इसका फॉर्मूला होता है n+r-1 cr-1। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल की फॉर्म में लिखते हैं, 50 टॉफीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन सच दैट ईच वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ टॉफीज। तो आपके पास ये फॉर्मूला है n+r-1 cr-1, ये हो जाएगा, इसमें n आपका हो जाएगा 50, आपका जो है r हो जाएगा 5, क्योंकि 50 टॉफी है, 5 बच्चों को मिल रही है, कितनी भी मिल सकती हैं। तो आपका हो जाएगा 50+5-1 c5-1, तो ये हो जाएगा 55-1 c4, 5 - 4 3 और 54 c4, इसका आंसर ये आएगा 54 c4। ठीक है, अब ऊपर वाले में ही नॉन डिस्टिंक्ट है, मतलब अभी तो ये जो टॉफियां थी ये मतलब ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल थी, अब ये एन डिस्टिंक्ट चीजें हैं, मतलब कि ये अलग अलग है। तो इसका हो जाएगा n-1 cr-1। ठीक है, अब आगे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग n डिस्टिंक्ट थिंग्स टू r डिफरेंट पर्सन। मतलब कि आपके पास n डिस्टिंक्ट चीजें हैं और r लोगों को देनी है आपने, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा r⁴n। यहाँ पर ये है नॉन डिस्टिंक्ट थिंग्स, मतलब कि एनी नंबर ऑफ, मतलब कितने भी नंबर नहीं मिल सकते लोगों को, वो r ही मिलने चाहिए। ठीक है, कि मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसे करना है नॉन डिस्टिंक्ट थिंग के लिए। तो ये तरीका है इसका, n-1 cr-1। ठीक है, अब n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, वो r डिफरेंट पर्सन को देनी है, तो उसका फॉर्मूला है r⁴n। अब केस नंबर 10 है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m+n डिफरेंट थिंग्स इन 2 ग्रुप्स। अब ग्रुप 2 हैं, आपके पास चीजें हैं m+n कंटेनिंग m एंड n थिंग्स रिस्पेक्टिवली। जो, देखो आपके पास m+n चीजें थी, अब आपको वो 2 ग्रुप में बांटनी है, जिन ग्रुपों के अंदर, एक ग्रुप के अंदर m चीजें हों और दूसरे में n चीजें हों, ऐसे बांटनी है। तो उसका तरीका है m+n(cn) इंटू m(cm) या फिर m+n(cm) इंटू n(cm)। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, अगर आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर अगर आपको बोले कि ये वाला काम भी हो रहा है और ये वाला भी हो रहा है, तो आप सिलेक्शन करते हुए इक्वल टू लगाओगे। और अगर वो बोलता है कि ये वाला काम भी हो रहा है, ये दो, अगर दोनों काम हो रहे हैं,
तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और मतलब दोनों में से कोई एक हो रहा है तो आप प्लस करोगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करते हैं कि देखो, अगर आपके पास एक ऐसा, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक एप्लीकेशन है ये, कि अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने हैं, अगर आपको एक स्क्वायर दे दिया जाए, इसकी साइड थी, एक स्क्वायर है आपके पास जिसकी साइड थी एक्स, एक्स ये और एक्स ये, स्क्वायर की साइड एक्स थी, तो इसमें कितने स्क्वायर बन सकते हैं, इसके अंदर कितने स्क्वायर फॉर्म हो सकते हैं, मतलब जब आप इसको ऐसे डिवाइड करना शुरू करोगे तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने स्क्वायर फॉर्म हो सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और आगे प्लस, आगे तक जाएगा, जितनी नंबर ऑफ, जितना साइड का वो, जितनी नंबर ऑफ साइड है, जो साइड का वो है आपका डायमेंशन का स्क्वायर, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे आपके 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस जितना साइड का डायमेंशन उसके ऊपर। अब समझ लो आपके पास एक रेक्टेंगल दिया था जिसकी एक साइड थी एम और एक साइड थी एन, ये मतलब कि एक एम इंटू एन का एक ग्रिड बन गया ये। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे इसमें एम इंटू एन प्लस m-1 इंटू n-1, m-2 इंटू n-2, और ये आगे तब तक चलता रहेगा जब यहाँ पे जाके 1 नहीं बन जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे आपके 1 प्लस 2 प्लस 3 आगे तक m मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 आगे तक n। ठीक है, n तक, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इफ अगर आपको बोल रहा है कि आपके पास अगर इफ एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, नॉन कोलिनियर का मतलब कोलिनियर, पहले कोलिनियर जानते हैं क्या होता है। अब देखो, ये जो यहाँ से हमने बात करना शुरू करी है ना, ये आपका केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन है, कि आपके पास एक स्क्वायर दिया है तो आप उसके अंदर कितने स्क्वायर बना सकते हो, या आपके पास लाइन दी गई, पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो, या आपके पास लाइन दी गई है तो आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो उससे, या आपके पास अगर रेक्टेंगल दिया गया तो आपके उसके अंदर से कितने स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप कितनी लाइंस बना सकते हो। ठीक है, ये है। तो अगर आपके पास एन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर का मतलब तो होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट समझ लीजिए, ये सीधी लाइन में है एक नहीं, तो कोलिनियर होंगे। जो भी पॉइंट एक ही लाइन में लाए करते हैं उनको कोलिनियर बोलते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट से क्या है कि कोलिनियर पॉइंट से आप ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है, उन्हीं 3 पॉइंट को यूज करके अगर कोई भी जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे के सारे, तो आप उसे ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर का मतलब कि वो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे, नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वो पॉइंट लाई कर रहे हैं कहीं कहीं, कि एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ऐसे है। और कोलिनियर का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे के सारे, ये कोलिनियर है। को लीनियर, जो एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, वो रैंडमली यहाँ कहीं भी लाई कर रहे हैं, जैसे रैंडमली कहीं भी लाई कर रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट हो गया, एक यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। तो अगर एन है वो ऐसे नॉन कोलिनियर, समझ लीजिए ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके एन हो गए नॉन कोलिनियर, तो देन नंबर ऑफ लाइन फॉर्म्ड आर। अब देखो, अब ये है ऐसा, एक ये परम्यूटेशन कैसे यूज हो रहा है इसमें, ये दिखाते हैं आपको। और कॉम्बिनेशन कैसे यूज हो रहा है इसमें, कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, परम्यूटेशन नहीं, क्योंकि आपको कोई ऑर्डर नहीं बोला है कि लाइनें कैसी होनी चाहिए। अब देखो, आपको एक लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, फिर एक और लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, मतलब आपको कोई भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो हम एन में से 2 सेलेक्ट नहीं कर रहे, सिलेक्शन ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स दे दिए और उसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपको लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो आपने उसमें से 2 सेलेक्ट कर लिए। तो इसका मतलब आपका जो सिलेक्शन का फॉर्मूला एन, आप में कॉम्बिनेशन लगेगा सिलेक्शन के फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा NC2। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया। अब देखो, अब आपने बात करी थी कि आपके पास ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब देखो, आपको एक ट्राइंगल बनाना है अगर, तो आपको कितने पॉइंट चाहिए, समझ लीजिए ये 3 पॉइंट थे।
आप इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो आपको ट्राइंगल बना दिया आपने। फिर आपके पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था और एक ये था, फिर आपने इनको यहाँ से जोड़ा, एक ट्राइंगल यहाँ बन गया। फिर आपके पास एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा ये था और ये एक ट्राइंगल यहाँ बन गया। ये आपके पास एक पॉइंट था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, एक ट्राइंगल बन गया। तो आप देख पा रहे हो कि हमें ट्राइंगल बनाने के लिए नंबर ऑफ गिवन पॉइंट में से तीन सिलेक्शन करने पड़ रहे हैं। तीन ट्राइंगल बनाने के लिए नंबर ऑफ गिवन पॉइंट्स में से हमें तीन सिलेक्शन करने पड़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल कितने बनेंगे वो जानने के लिए हमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एन पॉइंट्स हैं, और उसमें से हमें कितने सिलेक्शन करने हैं, तीन। तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं, तो हो जाएगा एन सी थ्री। तो ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है एन सी थ्री आपका, ठीक है। और लाइन का है, नंबर ऑफ लाइन निकालने का, एन सी टू। अब एक बार ऊपर चलते हैं, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कंडक्ट कर दी है केस नंबर 8 में। तो केस नंबर 8 में है कि आपके पास डिवाइड करनी है आपने एन नॉन डिस्टिंक्ट थिंग को। एन आपके पास नॉन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं जिसको आपको आर डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब ग्रुप सेम नहीं है, ग्रुप अलग अलग है। तो उसका फॉर्मूला है आपके पास एन माइनस वन सी आर माइनस वन, जो आपके पास यहाँ दिया हुआ है। अगर आपके पास एन नॉन डिस्टिंक्ट चीजें हैं उसको आपको डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब एन नॉन डिस्टिंक्ट चीजों का मतलब एन चीजें सेम है, ये सारी की सारी एन चीजें सेम है, और जो ग्रुप है वो सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसका तरीका होगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टू आर डिफरेंट पर्सन, मतलब यहाँ चीजें भी डिफरेंट है और पर्सन भी डिफरेंट है, तो आपका हो गया आर टू द पावर एन यहाँ पर, ठीक है। बस ये बताना था। So with this, we would like to wind up the permutation combination lecture number 1. In this lecture, we have just understood the concept, and in the next lecture, we will be taking up the questions. 15 to 20 questions will be solving, and जो भी हमने concept यहाँ पढ़ा है उन questions को उसी concept पे भेज दें। वो permutation combination एक बहुत बड़ा topic है, तो इसको सारा का सारा एक lecture में नहीं लेना चाहिए, इसको divide करते हैं हम। वैसे जो हम आपको कंसेप्ट भी कराए हैं उसमें भी आपको एग्जांपल दे ही दिया गया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू कराएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और ब्रश अप हो जाए। सो विद दिस वी वुड लाइक टू एंड ओवर हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कीप वर्किंग हार्ड।